Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow during your education. I welcome you all to join online class. Now let's start the video. This is the second chapter of class 4th subject science and the name of the chapter is adaptation in plants. Dear students, we already know that plants are made up of many parts and each part play an important role in helping the plant to live and grow. The part of the plant which grows below the soil is called the root. प्लांट का वह पार्ट जो सॉइल के नीचे की तरफ ग्रो करता है रूट पार्ट होता है एंड द पार्ट विच ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट. और प्लांट का वह पार्ट जो सॉइल के ऊपर की तरफ ग्रो करता है शूट पार्ट होता है. रूट फिक्स ए प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड अप टू द plants. The stem gives support to the plant above the ground. Water and minerals taken in by root of the plant travel to the leaves through stem. Flowers are the most attractive part of the plant and make a plant look beautiful. There are flowers of many colors, shapes and sizes. Fruit is formed from the flower. There are seeds inside the fruit. Seed produced a new plant. Seed of some plants can be eaten. They are called edible seed and seed of some plants cannot be eaten are called inedible seeds. Green plants make their own food. Leaves of green plants make food by the process of photosynthesis. Some plants may still have green leaves and make some of their food through photosynthesis. Most of parasitic plants do not make their own food by the process of photosynthesis and are dependent totally on their host for nutrition. Insectivorous plants are green plants that are able to make their own food but they grow in soil that lack nutrients. These plants trap insects, kill them, digest and absorb nutrition from their body. For example, picture Venus flytrap and sundew. In this video, we will learn about identify various aquatic plants, differentiate between floating, fixed and underwater plants, learn about land or terrestrial plants. Students, plants grow in different places. They can be found in dry and sandy areas, damp and wet plains, hilly areas, valleys, high mountains and even underwater. The place where an organism usually lives and grows in naturally is called its habitat. Place जहाँ कोई भी organism naturally रहते हैं और grow करते हैं वह उस organism का habitat होता है. A habitat can be as small as a patch of a garden or big as a forest. Habitat small और big दोनों हो सकते हैं. Sometimes plants find it difficult to live in a climate and they have to adapt or change in order to survive in habitat. Adaptations are special features that help a plant to survive in its habitat. कई बार प्लांट्स को क्लाइमेट में रहने के लिए कुछ डिफ़िकल्टी होती है तो वे क्या करते हैं वे सर्वाइव करने के लिए अपने आप को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं अपने अंदर चेंज कर लेते हैं जिससे वे उस हैबिटेट में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं. Depending on the habitat they live in, plants can be divided into two major groups: water or aquatic plants, land or terrestrial plants. Now the first part is water or aquatic plants. The plants that grow in water are called aquatic plants or water plants. जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. वाटर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सो
Aquatic habitats occupy a great area than terrestrial. हमारी अर्थ की सरफेस का 71% जो पार्ट होता है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए टेरेस्ट्रियल की अपेक्षा एक्वेटिक हैबिटेट ज़्यादा ग्रो करते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स में ग्रो इन साल्ट वाटर, फॉर एग्जाम्पल ओशियन, सीज और फ्रेश वाटर such as lakes, ponds, rivers, and streams. There are three types of aquatic plants: floating, fixed, and underwater. Floating plants. Floating plants like duckweed, wolffia are light and spongy, similar to a sponge. These plants have lot of empty spaces filled with air. This makes these plants very light. Thus, the plants are able to float on the surface of water. फ्लोटिंग प्लांट्स स्पंज के जैसे होते हैं. इनमें बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं, यानी खाली जगह होती है, जिनके अंदर क्या होती है, एयर फिल होती है. एयर की वजह से ये बहुत हल्के हो जाते हैं और वाटर की सरफेस पे इजीली फ्लोट कर सकते हैं. द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स is usually waxy to repel water. The root of these plants are not fixed. इनकी रूट फिक्स्ड नहीं होती है. The roots hang loosely in the water. Fixed plants. Fixed plants have fixed root to the bottom of the water body, such as pond. They have long stem to reach the surface of water. फिक्स्ड प्लांट्स में रूट वाटर बॉडी के बॉटम पार्ट में फिक्स्ड होती है. इनमें स्टेम जो होता है वो लॉन्ग होता है, जो कि आसानी से वाटर की सरफेस तक पहुंच जाता है. दे हैव ब्रॉड लीव्स दैट फ्लोट ऑन वाटर. द लीव्स ऑल्सो हैव वैक्सी कोटिंग दैट हेल्प्स द लीव्स टू स्टे ड्राई एंड प्रिवेंट रोटिंग. इनमें ब्रॉड लीव्स होती है जो कि वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती है. स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स. इनकी लीव्स के ऊपर की जो सरफेस होती है वहां पर स्टोमेटा होते हैं. दे हैव थिन होलो फ्लेक्सिबल एंड लाइट स्टेम विच हेल्प द लीव्स टू फ्लोट. दे ऑल्सो बेंड विद द फ्लो ऑफ वाटर, thereby preventing डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग वाटर करंट. स्टेम जो होता है वो लीव्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है, साथ ही इनको वाटर के फ्लो और स्ट्रॉन्ग जो वाटर करंट होता है उससे डैमेज होने से बचाता है. लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स. वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी एंड रिमेन फुली अंडर वाटर. अंडर वाटर प्लांट वाटर बॉडी के बॉटम में फिक्स्ड रहते हैं और कंप्लीटली वाटर के अंदर ही होते हैं. स्टोमेटा आर एब्सेंट इन लीव्स. इनमें स्टोमेटा नहीं होता है. कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट ऑफ द लीव्स थ्रू द सरफेस. अंडर वाटर प्लांट सपोर्ट एनिमल्स लाइफ टू ए ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच कीप्स द एक्वेटिक एनिमल्स अलाइव. अंडर वाटर प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की सरफेस से लीव्स द्वारा लिया जाता है. ये एनिमल्स की लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो कि वाटर में रहने वाले एनिमल्स ब्रीथिंग की प्रोसेस में यूज ले लेते हैं. अंडर वाटर प्लांट्स लाइक हाइड्रिला हैव थिन नैरो लीव्स. वेलिस्नेरिया हैज रिबन लाइक लीव्स. नाउ our second part is land or terrestrial plants. All plants that grow on land are called terrestrial plants or land plants. वे plants जो कि land पर grow करते हैं terrestrial plants कहलाते हैं. There are different kinds of land areas. Plants growing in each of these areas need to adjust to kind of weather, amount of rainfall, type of soil, and other factors found in that places. Plants in the plains. Some plants grow in the plains where the climate is hot in summer and cold in winter. कुछ plants plain area में grow करते हैं
जहाँ पर क्लाइमेट समर में हॉट और विंटर में अधिक कोल्ड होता है। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स हैव मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट, सो दे हैव सेवरल ब्रांचेज। प्लेन एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स को स्प्रेड होने के लिए, फैलने के लिए अधिक स्पेस की ज़रूरत होती है, जिससे इन प्लांट्स में बहुत सारी ब्रांचेस भी होती है। दे हैव फ्लैट लीव्स, these help water to evaporate and keep the tree cool when the climate gets hot. Flat leaves also help to trap lots of sunlight. इनमें फ्लैट लीव्स होती है जो कि हॉट क्लाइमेट में वाटर इवेपोरेट कर ट्री को कूल रखती है और साथ ही बहुत ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं। मैंगो, banyan, neem, peepal, and shisham are some trees that grow in plains. Some of these trees lose all their leaves at once, generally during autumn, in order to survive harsh weather conditions. As spring approaches, new leaves start growing. Such trees are called deciduous trees. For example, cherry and beech tree. कुछ प्लांट्स की लीव्स ऑटम सीजन में गिर जाती है और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आती है इन पर न्यू लीव्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। ट्रीज दैट डू नॉट लॉस देयर लीव्स एट वंस आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जैक फ्रूट एंड यूकलिप्टस ट्री। प्लांट्स इन डेजर्ट्स। Deserts are dry and very hot places. There is scarcity of rainfall and a lot of direct sunlight fall on the plants. डेजर्ट एरिया बहुत ही ड्राई और हॉट होते हैं। ऐसे एरियाज में रेन बहुत कम होती है और सनलाइट जो होती है वो डायरेक्टली प्लांट्स पे गिरती है। द सॉइल इन डेजर्ट्स इज सैंडी एंड अनेबल टू होल्ड मच वाटर। यहाँ की जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल होती है जो कि ज़्यादा अमाउंट में वाटर को होल्ड नहीं कर सकती है। कैक्टस प्लांट इज ए एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। सम adaptations in deserts are, in these areas plants store water in their stems. इन एरियाज के जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेम में अपना वाटर स्टोर करके रखते हैं। इनमें रूट जो होती है वो लॉन्ग होती है। लॉन्ग रूट सिस्टम इन डेजर्ट प्लांट्स go deep into the ground to absorb water. Most plants are leafless. In cactus, leaves are reduced to spines. Cactus plants की leaves किस में change हो जाती है? Spines में. Waxy coating on stem and leaves help reduce water loss. Stem is green, thick and fill in water. Photosynthesis is carried out in stem. कैक्टस प्लांट में स्टेम ग्रीन, थिक और वाटर से फिल रहता है। कैक्टस प्लांट में फूड जो होता है वो इसके ग्रीन स्टेम द्वारा ही बनाया जाता है। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसके स्टेम पार्ट में ही होती है। प्लांट्स इन माउंटेन्स। प्लांट्स ऑन माउंटेन्स एंड हिल्स आर एडेप्टेड टू ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर। माउंटेन्स और हिल्स में जो ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेट। दे आर कोन शेप्ड सो दैट स्नो फॉल ऑफ इजीली फ्रॉम देयर सरफेस। इनकी जो शेप होती है वो कोन शेप्ड होते हैं जिससे कि स्नो जो होती है वो इजीली इनकी सरफेस से फॉल हो जाती है, गिर जाती है। मोस्ट प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स। वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स prevent evaporation and loss of water. The dark color of the leaves allows more sunlight to be absorbed. इनकी leaves का जो कलर होता है वो डार्क होता है जिससे ये ज़्यादा मात्रा में सनलाइट को कैच कर सकते हैं। These trees do not bear flowers but have seed in cones. They are called conifers. इन ट्रीज में फ्लावर्स नहीं होते हैं लेकिन इनमें कोन्स में सीड होते हैं जिन्हें कोनिफर्स कहते हैं और ऐसे ट्रीज को कोनिफर्स ट्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाइन एंड फिर। प्लांट्स इन हैवी रेनफॉल। इन एरियाज विथ हैवी रेनफॉल
एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड। इन एरिया में बहुत ज़्यादा रेन होती है, इसलिए यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज ऐसे एरियाज में अच्छे से ग्रो करते हैं। दे हैव प्लेनिटी ऑफ सनलाइट एंड वाटर थ्रू आउट द ईयर। द ब्रॉड एंड एबुडेंट लीव्स कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। लीची, पाइनएप्पल, sugarcane, rubber, and teak plants grow well in these areas. Plants along the sea coast. Trees in coastal areas are well adapted to grow in sandy soil, salty water, and high rainfall. कोस्टल एरियाज में ग्रो करने वाले ट्रीज अपने आप को वेल अडेप्ट कर लेते हैं इन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ग्रो करने के लिए। दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम दैट कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट ग्रो डीप इनटू द सैंडी सॉइल। प्लांट्स इन marshy or swampy areas. Marshy areas have sticky and clay soil. It is difficult for plant to grow in such areas as air cannot reach the roots. मार्शी एरियाज में स्टिकी और क्ले सॉइल होती है, जिससे कि इन एरियाज में प्लांट्स का ग्रो करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनमें एयर जो होती है वो रूट्स तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ये जो रूट्स होती है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है। दस रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ फ्रॉम द एयर। इसलिए इन प्लांट्स की जो रूट होती है वो ब्रीथ करने के लिए सॉइल के बाहर की तरफ निकली रहती है। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। ट्रीज ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स, फॉर एग्जाम्पल rhizophora. If you have any query, concern or suggestions, please write us on mentioned comment box. We will try to resolve your query. Be happy, be safe. Thank you.